So I welcome you all on behalf of Association of Muslim Professionals. My name is Shehzad and I represent Association of Muslim Professionals India. I welcome you all for training for NGOs and individuals to help students get government and corporate scholarships, as we all know that large number of students drop out from their higher education due to lack of resources and financial stability. Getting scholarships and financial assistance can be very important for these students. And everyone who has joined this webinar after this session, you all will be able to help and guide students in your own district or city with different scholarship schemes, inshallah. So before we start our live session, we'll do a short qira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. Thank you, everyone. So we'll start with a short presentation of Association of Muslim Professionals. I'm sure that everyone who is here know Association of Muslim Professionals, but if you don't know about it, AMP stands for Association of Muslim Professionals. So AMP is registered in India, United States of America, United Kingdom, and Australia as a non-profit organization. AMP has completed its 12 years serving our community in the field of education, employment, and empowerment. AMP has a vision to positively impact lives of 10 million people by 2030. AMP's mission is to empower the underprivileged for the greater benefit of the society in general and nation as a whole. AMP's vision is to be a model community which is advanced in education, socially progressive, culturally vibrant, politically influential, economically dynamic. What AMP has achieved in past 12 years is right in front of you. You can just have a glance at it so you can understand our achievements, what projects, what activities we have done in the past 12 years. We do our activities in school development programs. We have employment assistance cell, scholarships and self-employment, AMP Resource Center, award and partnerships. These are mainly our flagship projects where we work towards our community. AMP's presence, on-ground presence, AMP is currently having more than 100 active chapters, which are spread across 25 states, and we have got active volunteers in 16 countries. We have got more than 6,000 active members who are connected with us. Our online presence, we have more than 125,000 members and professionals who are connected through social media like Instagram, Facebook, Google, WhatsApp, and LinkedIn. If you wish to join AMP, you can just log on to www.ampindia.org/join-AMP, and we'll be glad to have you on board with us. I would now request our project head, Mr. Razak Sheikh, to kindly take over from here and host this session. Razak bhai? Assalamu alaikum everyone. Very good afternoon to all the members who have joined us over here. As you know, AMP started 12 years back with a single mission that we will help the youth of this country in two areas. One is education and second is employment. We have tried to, in last 12 years, we have tried to help the youth of this country irrespective of caste, creed or location or category where they belong to. The only mission was to help the youth so they can stand on their own feet and they can take India forward. आज का जो प्रेजेंटेशन है उसका आज का जो वेबिनार हमने रखा है उसका इंटेंशन ये था कि अब तक हम लोग इतने सालों से बच्चों को एजुकेशन में हेल्प करते आ रहे थे, बट सबसे बड़ा जो चैलेंज बच्चों के सामने आ रहा था जिसकी वजह से ड्रॉप आउट होता था वो था फाइनेंशियल कंडीशन। काफी बच्चे लोग फाइनेंशियली वीक होने के कारण एजुकेशन से ड्रॉप आउट ले रहे थे।
Amir Nurle, if you can mute your phone, please. तो हमने फिर इसमें कोशिश की थी, पिछले 6 साल पहले हमने कोशिश की थी कि बच्चों को हम लोग खुद स्कॉलरशिप दें। हर साल हम लोग तकरीबन 300 बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं एजुकेशन के लिए। बट क्वेश्चन मार्क ये आता है कि हमें जो एप्लीकेशंस आते हैं वो 3, साढ़े 3, 4,000 एप्लीकेशन आते हैं। हम सिर्फ 300 बच्चों को हेल्प कर पाते हैं क्योंकि हमारा फाइनेंशियल बजट उतना होता है। फिर हमने डिसाइड किया क्यों ना इसको मास स्केल पे लेके जाया जाए, ताकि बच्चों को जितना भी स्कॉलरशिप में अवेलेबल ऑप्शंस है उनमें उनको हेल्प किया जाए। तो 2020 का हमारा जो मिशन था वो ये था कि वी विल हेल्प एटलीस्ट 10,000 स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप प्रोसेस गाइडेंस के लिए। ये 10,000 बच्चों को अगर हमको हेल्प करना है तो हमारी कोशिश ये है कि इंडिया में 700 डिस्ट्रिक्ट है, इन 700 डिस्ट्रिक्ट में हमको वॉलंटियर ट्रेन करना है। हमारी कोशिश है, जैसा आज का ये पहला वेबिनार हमने रखा है, इसी तरह इंशाल्लाह हम लोग और वेबिनार रखेंगे जोनल वाइज, रीजन वाइज, जहाँ पर हम लोग और लोगों को ट्रेन करेंगे, अलग अलग एनजीओ को कनेक्ट करेंगे। हम चाहते हैं सब एनजीओ के साथ मिलके, वॉलंटियर्स के साथ मिलके, टीचर्स के साथ मिलके, स्टूडेंट के साथ मिलके एक बड़ी टीम बनाया जाए 500,000 लोगों की, जो हर वक्त बच्चों को हेल्प करने के लिए तैयार रहे। हमें बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आती है, हम और प्रमोट करेंगे, स्पेशली बिकॉज ऑफ कोविड। बहुत से बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स के फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक हो चुके होंगे और वो लोग कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज ऑन एजुकेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरत है हम लोग एक वॉलंटियर टीम बनाए 500 या 1000 लोगों की, जो बच्चों को एटलीस्ट हेल्प करे, गाइड करे कि आज क्या क्या स्कॉलरशिप अवेलेबल है। अगर हम लोग ने सारे स्कॉलरशिप को ऐड कर लिया इंडिया में तो तकरीबन 40-50 हजार करोड़ का बजट बनता है वो। इट्स अ ह्यूज अमाउंट दैट इज देयर व्हिच कैन बी यूटिलाइज, बट बच्चों को मालूम नहीं होता है कहाँ पर क्या है, किस तरह से उसको अप्रोच किया जाए। हम लोग जो भी हमारे ये 500 वॉलंटियर बनेंगे या 1000 वॉलंटियर बनेंगे, हम उनका, हमारी कोशिश होगी कि मंथली हम उनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, उन लोगों को हम लोग गाइड करेंगे किस तरह बच्चों को अप्लाई करने में हेल्प करना है। प्लस हम लोग को जो भी बच्चों का एप्लीकेशन आएंगे, रिक्वेस्ट आएंगी, इंक्वायरीज आएंगी, हम लोग वो डिस्ट्रिक्ट वाइज या लोकेशन वाइज उस वॉलंटियर को शेयर करेंगे कि आप लोग इन बच्चों को गाइड कीजिए। आप गाइडेंस जो होगा वो फोन पे होगा, ईमेल पे होगा, व्हाट्सएप पे होगा, ये तीनों मोड के तरह आप बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। राइट? अगर एक जन अगर 100 को हेल्प करेगा, इट्स अ बिग टास्क, लेकिन 100 लोग मिलके अगर 10-10 को हेल्प करेंगे तो हम लोग इंशाल्लाह 1000 बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए 10,000 बच्चों को अगर हेल्प करना है तो हमें कम से कम 500 या 1000 वॉलंटियर चाहिए, जिसको हम कोशिश करेंगे, पूरी उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, पूरी उसको ट्रेनिंग देंगे, किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या करना है, बच्चों को क्या-क्या गाइडेंस करना है। आज का जो सेमिनार है उसका यही है, मंशा यही है कि आप लोग खुद सीखें किस तरह से है। इसको आगे हम लोग और एलिबोरेट करेंगे। जो आप में से, हम लोग लास्ट में एक लिंक शेयर करेंगे, आप लोग में से जो लोग को वॉलंटियर बनना है इस काम के लिए, इसमें वॉलंटियर बनने का मतलब ये नहीं है कि बहुत टाइम देना होगा आपको। आपने अगर हफ्ते में 2 घंटा निकाल सकते हैं, दैट इज गुड इनफ टू हेल्प द पीपल। हफ्ते में सिर्फ 2 घंटा आपको निकालना है बच्चों को हेल्प करने के लिए। हम आपको सारी गाइडेंस देंगे, सारी कैपेसिटी बिल्डिंग आपकी हम करेंगे। तो ये प्रेजेंटेशन सेमिनार के एंड पे हम लोग आपको एक लिंक शेयर करेंगे। आप में से जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा इस काम में हमें ज्वाइन करने के लिए, आप लोग वो लिंक को फिल कीजिए फॉर्म। हम आपके लिए स्पेशल एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और एक ईमेल ग्रुप बनाएंगे, जिसमें ये सारा कम्युनिकेशन हम लोग फिर हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे। हमारा आपसे इनवाइट है, आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में, आप एनजीओ कैपेसिटी में, आप टीचर्स हो तो पूरी स्कूल की आप जिम्मेदारी ले सकते हैं, स्टूडेंट्स है तो आप लोग बाकी बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। स्कॉलरशिप जो होती है वो प्री स्कूल की, प्री स्कूल लेवल की होती है, ग्रेजुएशन लेवल की होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल होती है, जो अभी हमारे एक्सपर्ट स्कॉलरशिप एक्सपर्ट जो है अमीर नूरले साहब आपको डिटेल में बताएंगे। बट ये सारी चीज होती है और इसमें फॉर्म फिलिंग बहुत आसान चीज होती है, बट हमारे बच्चे समझ नहीं पाते, कर नहीं पाते। अगर हम लोग ने 2-3 सेशन में ट्रेनिंग में आपको बराबर से बता दिया तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत से बच्चों की लाइफ में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं। देयर आर मेनी स्कॉलरशिप व्हिच आर डोमेस्टिक, देयर आर मेनी स्कॉलरशिप व्हिच आर इंटरनेशनल। विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग। हम कोशिश करेंगे आप लोग को सबके बारे में अपडेट दिया जाए। हमने हमारी जो वेबसाइट है, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल की जो वेबसाइट है, www.ampindia.org/scholarship, हम लोग ने एक होम पेज बनाया है जिसपे हम लोग सारी डिटेल आपको अपलोड करते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। क्योंकि स्कूल और कॉलेज स्टार्ट होने का एक अलग कैलेंडर होता है, लेकिन स्कॉलरशिप जो होती है ये पूरे साल भर आते रहती है।
राइट। हमें हमारी कोशिश करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग को उसमें एनरोल किया जाए ताकि उनको उसकी बेनिफिट मिल सके। तो ये है प्रोजेक्ट के बारे में जो हम लोग इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। तो बिफोर आई हैंड ओवर टू द एक्सपर्ट अमीर नुल्ले साहब, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जैसा आप लोग ने आज टाइम निकाल के ये सेमिनार अपने अटेंड किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसी तरह से हमें ज्वाइन करें एज अ वॉलंटियर, ताकि हम लोग मैक्सिमम बच्चों को इसमें हेल्प कर सके। हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको अपने नाम पे उधर बच्चों को हेल्प करना है, आपके एनजीओ के नाम पे हेल्प करना है, जिस हिसाब से आपको करना है आप कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी सेंट्रली सारा इंफॉर्मेशन, सेंट्रली सारा डेटा कोलेक्ट करके आपको दिया जाए। जिस महीने में जो स्कॉलरशिप लॉन्च होगी उस महीने में आपको उसका अपडेट दिया जाए। वेरियस हेड्स में जो स्कॉलरशिप होती है उसको बराबर से बाइफरकेट किया जाए, ताकि आपके पास अगर कोई बच्चा आए तो आपको मालूम हो इमीडिएटली इसको किस किस स्कॉलरशिप में ये एलिजिबल होता है, इसको हेल्प कर सकते हैं। एंड दिस entire thing will be open for all community, all caste and everyone. We will request everyone to come together and help all the students, all the youth of the country, so together we can help the country to be much stronger and excellence in the field of education, right? Thank you everyone. Shehzad bhai, we can hand over to Amir Nurli sahab. अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि रज़ाक भाई ने बताया है कि वी आर लीडिंग दी स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट, और जैसे डिस्कस किया आपने रज़ाक भाई ने, तो इसी वे में हम जाएंगे। हमारा रोड मैप यही है कि हम एक साल में जो जो एक्टिविटीज़ करना है स्कॉलरशिप रिलेटेड, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। और ये एक फुल फ्लैज एक्टिविटी है। एनजीओ, स्टूडेंट्स, टीचर्स, इंडिविजुअल जो भी इंटरेस्टेड है वो इसे ज्वाइन कर सकता है, और सोसाइटी के लिए एक बेनिफिशियरी के तौर, बेनिफैक्टर के तौर पर हम आ सकते हैं। और जैसे मैं एक छोटा सा डिटेल्ड रोड मैप बता दूं आपको, क्या है ये एक साल में हमें करना क्या है। ये जो एक साल होगा, वी विल बी कंडक्टिंग वेबिनार्स हो गए। जैसे अभी हमने आज पहला वेबिनार है हमारा, तो ऐसे एक मंथ का या फिर एवरी वीक और एवरी मंथ स्कॉलरशिप्स की डिटेल्स हम बताते जाएंगे कि कौन से स्कॉलरशिप है, गवर्नमेंट के CSR फंड्स है, उसके कैसे अप्लाई करना है। एक एक पर्टिकुलर स्कॉलरशिप, पर्टिकुलर वेबसाइट, उसका डिटेल इंफॉर्मेशन रहेगा। इट्स लाइक अ सर्टिफिकेट कोर्स, और यू कैन से अ कोर्स करिकुलम, एक सिलेबस के तौर पर वैसा हम डिस्कस करेंगे, ताकि हर एक चीज़ का हमें इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगा। और यही इन्फॉर्मेशन हम स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हैं और स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, ताकि हमारा जो टारगेट है कि हम 10,000 स्टूडेंट तक पहुंचेंगे, 10,000 स्टूडेंट्स के फॉर्म फिल करेंगे एटलीस्ट, इंशाल्लाह। सो ये हमारा टारगेट अचीव करने में NGOs, वॉलंटियर्स, टीचर्स, इंडिविजुअल, आपकी मदद ज़रूरी है, और आप ये कर सकते हैं। और इससे जो फंड हम जनरेट कर रहे हैं, फंड हम यूटिलाइज कर रहे हैं, वो एक बहुत ह्यूज अमाउंट है। अराउंड इट विल बी 50 करोड़। अगर हमने एक 10,000 स्टूडेंट्स का फॉर्म फिल किया और उन्हें अगर मेरिट में आकर उनका स्कॉलरशिप मिलता है, देन इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और ऐसे ही चलते चलते हम एवरी ईयर ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और राउंड ईयर एक्टिविटी होगा, तभी जाके हमें इसका आउटकम पता चलेगा कि हाउ मच वी हैव यूटिलाइज द अवेलेबल CSR, गवर्नमेंट, NGOs फंड, और स्टूडेंट को कितना बेनिफिट हुआ है। और एक मेंटालिटी भी चेंज होगी स्टूडेंट्स की, कि जो स्टूडेंट्स को करना चाहते हैं, इफ दे आर नॉट फाइनेंशियल वेल, और वो छोड़ देते हैं कि वी कैन नॉट अफोर्ड दिस कोर्स, तो उनका भी एम बढ़ेगा, उनका भी करियर कोर्स चेंज होगा, और वो जो नामुमकिन है उनके लिए वो उसकी तरफ जा सकेंगे। सो एक ऐसा इनिशिएटिव है, ये पहला वेबिनार हम स्टार्ट करेंगे PPT से, ताकि बेसिक हम डिटेल्स देख सके स्कॉलरशिप के बारे में। और इसी तरह हम स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेंगे, और इसका आउटकम ऐसा आएगा कि जो स्टूडेंट्स है वो हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे, और जो रेशियो जो है स्टूडेंट्स का हायर एजुकेशन में ड्रॉप हो जाता है, वो एक पॉइंट तक के राइज होगा, ताकि हमने जो एक फैक्टर है फाइनेंस का फैक्टर, उस पर वर्क करेंगे, और फाइनेंस के फैक्टर पे ऑलरेडी वर्क करते करते हम जो रेशियो होगा उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे इंशाल्लाह।
So we'll start our presentation. Shehzad bhai, can you open the PPT? I hope everyone is able to see the presentation on the screen. Yes, it's visible. So here is the PPT. So we'll start like it's a training for you all and for me too. So we'll go on the next slide. As you can see, जैसे हम स्टूडेंट्स होते हैं तो राइट फ्रॉम द स्कूल लेवल से लेके PhD तक, डिग्री कॉलेज, जूनियर कॉलेज, सब स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है. बट इतना खाली एक ड्रॉबैक होता है कि हमें वो पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती है और स्टूडेंट तक राइट टाइम पर पहुंचती नहीं है. तो हमें इस पर ही वर्क करना है कि हम स्टूडेंट तक ये चीज़ पहुंचा सके और उनका जो करियर गोल है वो अचीव कर पाए स्कॉलरशिप्स के थ्रू, जिसमें वो फाइनेंशियली वेल नहीं थे, फाइनेंशियल लैक की वजह से अपना करियर गोल छोड़ रहे थे. नेक्स्ट स्लाइड. So here is the PPT which we need to discuss in more details. सबसे पहले जो रिक्वायर्ड थिंग है कोई भी स्कॉलरशिप एक्टिविटीज के लिए, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए, वो होता है इनकम सर्टिफिकेट और बाकी के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. आधार कार्ड स्टूडेंट्स के पास होता है जनरली, फोटो भी अवेलेबल है, मार्कशीट वो भी कॉलेज से मिलती है, स्कूल से मिलती है, रेसिडेंशियल प्रूफ एनीथिंग, आधार कार्ड हो गया, रेशन कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, एनीथिंग विच इज अवेलेबल. बैंक पासबुक कोई स्टूडेंट का नहीं होता है बट दे कैन मेक फ्रॉम द नियर बाय बैंक. कोई भी नियर बाय नेशनलाइज बैंक से स्टूडेंट का बैंक का पासबुक हम बना सकते हैं और फिर इसे जो उनकी फीस जो भरते हैं वो अवेलेबल होगी. एक ही फैक्टर हम बचता है इनकम सर्टिफिकेट, और इस पर थोड़ा टाइम लगता है, इसके ऊपर थोड़ा एफर्ट्स लगता है इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए. सो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स के लिए इसी डॉक्यूमेंटेशन पर वर्क करना है. डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में जब हम वर्क करेंगे तो वो यही है कि हमारा स्टूडेंट्स के पास से ये सब डॉक्यूमेंट्स हम जमा कराएं, जिसके पास नहीं है उन्हें बनाने की सहूलत या फिर हम हेल्प करें. जैसे बैंक अकाउंट नहीं है तो स्टूडेंट को भेज सकते हैं बैंक में, नियर बाय बैंक में, वहाँ जाके वो बता सके. माइनर अकाउंट भी बनता है, वो भी उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं. और इनकम सर्टिफिकेट वी कैन मेक इट फ्रॉम तहसीलदार ऑफिस. और इनकम सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो कंपीटेंट अथॉरिटी का होना चाहिए. कंपीटेंट अथॉरिटी, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो बनता है उसे हम कंपीटेंट अथॉरिटी का इनकम सर्टिफिकेट माना जाता है, वैलिड सर्टिफिकेट होता है. और ये जनरली सब जगह पर यही डॉक्यूमेंट लगता है. और जो हमारे लोकली अवेलेबल होता है, नगर सेवक, MP, MLA, ये सब डॉक्यूमेंट्स का जो इनकम सर्टिफिकेट हम बनाते हैं वो वैलिडिटी इसकी नहीं रहती है. जहाँ पर हम NSP पर, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अप्लाई करें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अप्लाई करें या फिर CSR फंड हो गया किसी में अप्लाई करें. सो बेटर है हम स्टूडेंट्स को डायरेक्ट करें कि नियर बाय तहसीलदार ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस से मालमतदार अलग अलग स्टेट्स में जैसे जो बोला जाता है वो वहाँ पर हम स्टूडेंट को भेजें और वहाँ से ये डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उन्हें कहा जाए. और कोई कोई स्टेट्स में ऑनलाइन प्रोसेस भी होगा, जैसे महाराष्ट्र स्टेट में अप्लाई सरकार है और गुजरात गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है मारू गुजरात. तो ऑनलाइन अगर बनता है तो वी कैन टेल स्टूडेंट के आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं. और अथराइज एजेंट्स होते हैं, जैसे महा ई सेवा केंद्र महाराष्ट्र में अवेलेबल है, तो अथराइज एजेंट के पास से भी ये डॉक्यूमेंट बन जाता है. सिर्फ इतना है कि हमें स्टूडेंट्स को इस इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बताना पड़ेगा ताकि वो ये अपना जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर कर सके एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप. और जैसे कि हम रजाक भाई ने बताया कि स्कॉलरशिप ओपन द राउंड द ईयर ओपन है, पूरे साल ओपन रहती है, हर वक्त हमें इसका इनकम सर्टिफिकेट लगेगी. तो यही है कि जैसे एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो रहा है, जैसा भी सेशन एकेडमिक सेशन का स्टार्ट सितंबर से हो सकता है, सो बिफोर डैट हमारे पास इनकम सर्टिफिकेट अगर आ जाए तो इट्स वेल एंड गुड. और उसके बाद भी हम बना सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ वन ईयर इज कि हमें डॉक्यूमेंटेशन स्टूडेंट का प्रिपेयर करना है और ये सब डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है और हमें ये डॉक्यूमेंट स्टूडेंट से प्रिपेयर करके लेना है. नेक्स्ट प्लीज.
हमारा फ्लो ऐसा रहेगा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में देखेंगे और देन वी कैन प्रोसीड विद द CSR फंड्स। वेबसाइट ओपन कीजिए शहजाद। तो वेबसाइट जैसे हमने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स जो होती है वो एक ही पोर्टल पर अवेलेबल है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स अवेलेबल होती है और एक बहुत इजी वे में ये फॉर्म फिल हो जाता है। बहुत सिंपल फॉर्म होता है और यहाँ पर अलग अलग स्कीम्स लिस्टेड है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है उसकी डिटेल्स भी अवेलेबल होती है, किसके लिए है वो भी अवेलेबल है। और सेंट्रल की स्कीम जितनी भी वो यहाँ पर अवेलेबल होती है। माइनॉरिटी अफेयर्स में 3 स्कीम लिस्टेड है। ओपन डाउन, स्क्रॉल डाउन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। यस, यहाँ पर स्कूल लेवल पे जो स्कॉलरशिप वो अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में CSS स्कॉलरशिप है जो क्लास 12 के बाद के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 12 के बाद बैचलर कोर्स और PhD कोर्स के लिए है। स्क्रॉल अपवर्ड एंड UGC स्कीम, और UGC की तरफ से जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है उसके भी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। अपवर्ड UGC स्कीम, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए UGC स्कीम में हम देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी नेशनल स्कॉलरशिप है जो यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स हो गए या फिर गर्ल्स के लिए है। और इसी तरह से स्टेट्स ने ऑप्ट किया है कि हम स्कॉलरशिप जो है वो NSP के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, उसकी भी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये एक फॉर्म जो होता है इसके ऊपर बहुत सिंपल फॉर्म होता है, आपको रजिस्टर करना है। अपवर्ड ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन, यस। तो एक सिंपल फॉर्म हम फिल करके अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं स्टूडेंट का। इसमें जनरली डिटेल्स जो पूछा जाता है वो एकेडमिक डिटेल्स होती है, बैंक अकाउंट डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स। एकेडमिक डिटेल्स लास्ट ईयर का परसेंटेज क्या है, फीस कितनी है करंट ईयर की, और फिर उसके बाद पर्सनल डिटेल्स में एड्रेस वो सब डालना रहता है, और फिर बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब डाल के एक सिंपल 1 पेज का फॉर्म जनरेट होता है जो हमें यूज करना है कॉलेज में, स्कूल में सबमिट करने के लिए। तो ये एक सिंपल फॉर्म है जो हम अराउंड 15 से 30 मिनट्स में फिल कर सकते हैं स्टूडेंट का। और ये 15 से 30 मिनट्स का एफर्ट स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत मीनिंगफुल होगा टू चेंज देयर लाइफ, चेंज देयर एजुकेशन, और ये हम इजीली कर सकते हैं। सो वी विल सी सम ऑफ द स्कॉलरशिप दैट आर अवेलेबल इन द PPT। और इसके जो फॉर्म फिलिंग का वीडियो है वो हम देख सकते हैं, अवेलेबल है। तो आज हम फॉर्म फिलिंग का वीडियो नहीं देखेंगे, डायरेक्टली वी विल सी द स्कीम्स, और उसके बाद फिर बिकॉज हर एक फॉर्म फिलिंग का वीडियो जो है वो अवेलेबल है, जब हमें रिक्वायर्ड है हम वो देख पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। एक हमने स्कीम देखा था सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो वो एक डिटेल में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ बता दूँ कि इट्स फॉर क्लास 12 के बाद जो स्टूडेंट्स पास होते हैं, क्लास 12 पास स्टूडेंट उनके लिए होता है जिनकी फैमिली इनकम 6 लाख से कम है, और सबके लिए UGC और UG PG कोर्स में बैचलर कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर नॉमिनल अमाउंट जो है 10,000 आपको पर ईयर मिलेगा स्टूडेंट्स को। और यहाँ पर एक दिया है कि 80 परसेंटाइल, हमें ये 2 डिफरेंस समझना पड़ेगा, परसेंटेज और परसेंटाइल। बिकॉज परसेंटाइल जैसे 100 स्टूडेंट ने एग्जाम दिए, उसमें से जो टॉप 20 हो गए, टॉप 20 स्टूडेंट्स जो हो गए उन्हें 80 परसेंटाइल कहा जाएगा, या फिर टॉप 20%। तो ये डिफरेंस होता है परसेंटाइल और परसेंटेज में। जैसे यहाँ पर लिस्टेड है कि महाराष्ट्र स्टेट का टॉप 20% या फिर 80 परसेंटाइल 65% पे क्लोज होता है। तो वैसे रिस्पेक्टिव स्टेट्स, रिस्पेक्टिव बोर्ड्स के अलग अलग कट ऑफ होते हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर हाई कट ऑफ जाएगा, अराउंड 80% होगा, 20% या फिर 80 परसेंटाइल का। तो जैसे स्टेट वाइज हम अप्लाई करें, जैसे जो स्टूडेंट अप्लाई करेगा उस हिसाब से ये स्कॉलरशिप उनको लिस्टेड वहाँ पर मिलेगी, अगर वो स्कीम में एलिजिबल है तो। और NSP पर मल्टीपल स्कीम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, बट सिलेक्शन आपका एक ही स्कीम में होता है जिसके अंदर आपका मेरिट होगा। सो इट्स अ वेल एंड गुड आइडिया टू हैव स्कॉलरशिप फ्रॉम NSP, और एक बहुत सिंपल वे में हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, जैसे हमने वहाँ देखा था
माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए 3 स्कीम लिस्टेड थी। प्री मैट्रिक जो क्लास 1 से लेकर 10 तक के, पोस्ट मैट्रिक क्लास 11 12 जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पीएचडी तक का जो स्कॉलरशिप होती है वो पोस्ट मैट्रिक होती है। देन मेरिट कम मीन्स जो है वो टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स के लिए है। बट मेरिट कम मीन्स का एक एडिशनल पार्ट है। ये प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम मीन्स वी नो अबाउट इट के ये स्टूडेंट के लिए, माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए अप्लाई करते हैं, मिलती है। बट इसमें एक जो है कि जो प्रोफेशनल कोर्स होगा, टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, एमबीए, टूरिज्म और बहुत सारे कोर्स लिस्टेड है वेबसाइट पर। तो अगर हम 85 इंस्टीट्यूट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, आईआईटीज हो गया, एनआईएफटी है, एनआईटी है, ये सब में करते हैं तो हमें फुल फी रिम्बर्समेंट मिलेगा। जैसे आईआईटीज की फीस 1,50,000 है तो स्टूडेंट को 1,50,000 स्कॉलरशिप मिलेगी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर हम नॉर्मल जैसे कोई पर्टिकुलर कॉलेज है, कोई भी दूसरी कॉलेज से करते हैं, एक्सेप्ट फ्रॉम दिस लिस्टेड इंस्टीट्यूट, हमें 25,000 जो माइनॉरिटी का फंड एलोकेशन है 25,000 ही मिलेगा। आईएम अहमदाबाद 20 लाख फीस है, हमें 20 लाख का स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलेगी। आईएम उदयपुर 6 लाख फीस है। तो ऐसे जितने भी यहाँ लिस्टेड है, कैन यू ओपन द वेबसाइट माइनॉरिटी अफेयर्स। हम वो 85 इंस्टीट्यूट में अगर स्टडी कर रहे स्टूडेंट तो उन्हें बता सकते हैं कि यू आर एलिजिबल। माइनॉरिटी स्टूडेंट जो है, जैसे जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट के थ्रू जो माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड, इंस्टीट्यूशन लिस्ट, नेक्स्ट टैब, यस। यहाँ पर 85 इंस्टीट्यूट का लिस्ट दिया हुआ है, हर एक स्टेट में कितने इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट किया हुआ है उसका लिस्ट है। तो हमें स्टूडेंट को बताना है कि ये जो इंस्टीट्यूट में अगर आप जाते हैं तो आपको फुल फी रिम्बर्समेंट मिलेगा और आपके एजुकेशन में बहुत हेल्पफुल होगा। और हमें यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है ताकि स्टूडेंट्स का और भी फायदा हो। तो प्रेजेंटेशन पीपीटी ओपन कीजिए। जैसे कि हमने देखा कि लिस्ट में सिर्फ 85 इंस्टीट्यूट अवेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड। पहले तो हम ये कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि आप ये इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन लीजिए, ये इंस्टीट्यूट के बारे में सोचिए, तो तब जाके स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि हम स्टूडेंट्स को कोचिंग कराएं। जो हम फंड्स स्कॉलरशिप का देते हैं स्टूडेंट्स को क्लास 12 के बाद, अगर कोई इंजीनियरिंग में जा रहा है, हम फर्स्ट ईयर की इंजीनियरिंग की फीस देते हैं, तो वो फीस को डाइवर्ट करके हम कोचिंग के ऊपर लगाए 11th 12th की, ताकि वो ये सब इंस्टीट्यूट में जाए, या फिर CA CS की कोचिंग के ऊपर लगाए, या फिर जो एंट्रेंस एग्जाम होता है JEE नीट, ये सब के कोचिंग के ऊपर लगाए। तब जाके स्टूडेंट का एनरोलमेंट यहाँ बढ़ेगा। और इसके बाद जैसे हम जानते ही है कि फुल फी रिम्बर्समेंट मिलने ही वाला है, 1,50,000 जो IITs की फीस है वो स्टूडेंट को मिलने ही वाली है। तो उसका फ्यूचर सिक्योर है और फाइनेंस में कोई हर्डल नहीं आएगा, और एक अच्छा सा कोर्स जो है प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ने का भी मौका मिल पाएगा। और इसी तरह एक और हमें करना है, रिक्वेस्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, या फिर हम कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर एक लेटर लिख सकते हैं, या फिर जिस वे में हम करना चाहे कि 85 इंस्टीट्यूट लिस्टेड है। ये 2004 का लिस्ट है, इसे अपडेट किया नहीं गया अभी तक। अपडेट करने की जरूरत है। हमारे इंडिया में IITs नए बन चुके हैं, NITs बन चुके हैं, ताकि और IITs NITs इस लिस्ट में आए और सब स्टूडेंट्स को जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वो इस फी रिम्बर्समेंट का बेनिफिट उठा सके। फॉर एग्जांपल जैसे IIM अहमदाबाद का अगर स्टूडेंट है उसे 20 लाख रुपीज रिफंड मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी। बट IIM नागपुर जो अभी रिसेंटली बना है, अगर वो स्टूडेंट IIM नागपुर में तो सिर्फ उसे 25,000 ही मिलेगा। सो एक फंड में थोड़ा डिफरेंस है। तो हमें ये डिफरेंस दूर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना है, ताकि और भी इंस्टीट्यूट इंडिया में जो है वो इस लिस्ट में ऐड कर पाए। अराउंड 85 से इंस्टीट्यूट से लेके ये बढ़ जाएगा, इट विल बी 120 इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर इन इंडिया। सब इंस्टीट्यूट इसके ना कवर हो जाएगा, IITs IIM NITs। तो ये एक हमें छोटा सा काम करना है यहाँ पर। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो जैसे मैंने बताया था कि NSP का सिंपल प्रोसेस होता है। फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन फॉर्म जिसके 3 स्टेप्स है, पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स एंड बैंक डिटेल्स। उसका प्रिंट लेना है और उसे कॉलेज में सबमिट करना है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ में, जो डॉक्यूमेंट्स हमने पहले स्लाइड पर देखा था। और इसका अपडेट जो हमें रेगुलरली मिलते रहता है। जैसे हमने फॉर्म भर दिया तो उसका अपडेट हमें आएगा, कॉलेज में सबमिट किए
और कॉलेज से वेरीफाई हो गया, उसका अपडेट हमें मिलेगा, देन इट गोज टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से वेरीफाई होके देन स्टेट ऑफिसर, देन फाइनली टू दी प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट। अगर आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हो गया, स्टूडेंट का नाम मेरिट लिस्ट में है, तो वो फिर फॉर्म जाता है बैंक अकाउंट डिटेल वेरिफिकेशन में। तो ये सब प्रोसेस कंप्लीट होके अगर हमने अभी आज ये मंथ में जुलाई, अगर पोर्टल ओपन होता है जुलाई में अप्लाई किया, तो हमें स्कॉलरशिप नेक्स्ट अप्रैल मंथ में आएगी, नेक्स्ट ईयर के अप्रैल मंथ में मिलती है। तो स्टूडेंट इस वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं, हम स्टूडेंट का फॉर्म इस वेबसाइट पर फिल कर सकते हैं ताकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा उठा सकें। नेक्स्ट प्लीज। हियर इज प्रगति स्कॉलरशिप जो है वो गर्ल्स के लिए है। हम थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप जो है वो गर्ल्स के लिए पर्टिकुलर जो है वो भी देखेंगे, बिकॉज एज सच इफ समवन सीज कि देयर आर लेस ऑप्शन एंड नॉट मच फॉर दी गर्ल्स, तो ईयर हम उन्हें अवेयर कर पाए कि बहुत सारे ऑप्शन है गर्ल्स के लिए भी। यहाँ पर 50,000 की स्कॉलरशिप गर्ल्स स्टूडेंट को मिलेगी फॉर डिप्लोमा और डिग्री इंजीनियरिंग, अगर इफ द फैमिली इनकम इज लेस देन 6 लाख और स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो। नेक्स्ट स्लाइड। बेगम हजरत महल वी ऑल नो कि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए होती है और 9 से लेकर 12 तक की है। जस्ट एक इसके एडिशनल ये है कि जैसे हमने डिस्कस किया कि इनकम सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का होना चाहिए, बट ईयर इज कि हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अलावा नगर सेवक, MP, MLA ये सब के पास से भी इनकम सर्टिफिकेट जो लेते हैं वो सबमिट कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि आपका डॉक्यूमेंट इंग्लिश या हिंदी में होना चाहिए। आपके रीजनल लैंग्वेज में होगा तो उसको आपको ट्रांसलेट करके फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। तो बेटर कि हम जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो जनरली रीजनल लैंग्वेज में होता है, तो उससे बेटर हम यहाँ पर लोकली जो अवेलेबल है नगर सेवक के ऑफिस से इंग्लिश में बना सकते हैं या फिर हिंदी में बना सकते हैं और इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करा सकते हैं स्टूडेंट्स को, गर्ल्स स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट स्लाइड। एक यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप है इंस्पायर स्कॉलरशिप, जो कि फर्स्ट ईयर BSc स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगी। और ये जो स्कॉलरशिप है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से है। एक स्टूडेंट की जनरली फीस जो BSc की होती है इट्स अराउंड 8,000 होगी, बट उसके कंपैरिजन में स्टूडेंट को 80,000 की स्कॉलरशिप दी जाती है, वो भी 5 सालों के लिए। बट कंडीशन ईयर इज कि आपको 1 परसेंटाइल में आना है, टॉप 1 परसेंटाइल। अभी टॉप 1 परसेंटाइल जैसे हमने देखा था CSS में अप्लाई करने के लिए टॉप 20% या फिर 80 परसेंटाइल था। तो 1 परसेंटाइल में 100 स्टूडेंट ने अगर एग्जाम दिए, जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो 1 परसेंटाइल होगा। तो ये जो स्टूडेंट है वो उसे एक ऑप्शन मिलता है कि इंस्पायर की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें और 80,000 जो पर ईयर में उसका बेनिफिट उठा सकें। इसमें हम कैसे पहचानेंगे हम इंस्पायर के लिए एलिजिबल है या नहीं? तो इंस्पायर के लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हमारे क्लास 12 साइंस स्टूडेंट्स के मार्कशीट के साथ में एक सर्टिफिकेट आता है जिसके ऊपर स्टूडेंट का नाम लिखा रहता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी रहती है कि यू हैव अवेल्ड इंस्पायर स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है अगर आप BSc के ऑप्शन में ऑप्ट करते हो, और वो भी प्लेन साइंस, नेचुरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बोटनी और जूलॉजी, ये जितने फील्ड है इसमें आप अप्लाई करते हो तो मिलेगा। और एक अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए अगर वो BSc करना चाहते हैं तो। और जैसे कि हमने देखा कि 1 परसेंटाइल, तो 1 परसेंटाइल भी वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। जैसे महाराष्ट्र स्टेट में 1 परसेंटाइल मीन्स आपका क्लास 12 साइंस का स्कोर 80% अबव है तो इट्स मीन्स यू आर इन दी 1 परसेंटाइल। और अगर आंध्र प्रदेश है तो इट्स अराउंड 97%। तो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा परसेंटेज, और हमें जैसे हमें सर्टिफिकेट मिलेगा वी कैन नो कि स्टूडेंट एलिजिबल इंस्पायर करे, और हम स्टूडेंट को समझाए, हम स्टूडेंट को अवेयर करें कि ये स्कीम अवेलेबल है और अगर वो BSc के लिए जाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट स्लाइड। और इसका क्राइटेरिया दिया हुआ है कि एक तो 1 परसेंटाइल का है, दूसरा JEE या फिर नीट का स्कोर जो है अगर 10,000 से कम है, मीन्स टॉप 10,000 स्टूडेंट जो है वो अगर अप्लाई करते हैं उन्हें भी इंस्पायर की स्कॉलरशिप मिल सकती है। और जो स्टूडेंट IAS या नाइसर ये सब इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उन्हें भी ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। और जनरली IICR जो है इंडिया का प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जैसे IITs है फेमस इंजीनियरिंग के लिए, वैसे IISER जो है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर BSMS डुअल डिग्री होती है, PhD अवेलेबल है। सो इट्स अ गुड इंस्टीट्यूट। और इंडिया में अभी बहुत सारे नए
IISER भी बनाए जा रहे हैं. So if any info, here the website available, DST Inspire, जो नीचे दी हुई है. नेक्स्ट स्लाइड. एक हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे. वेबसाइट ओपन कीजिए माइनॉरिटी अफेयर्स की. यहाँ पर एक जो पार्ट था माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए, जैसे हमने एक तो फुल फी रिइंबर्समेंट देखा मेरिट कम मींस का. दूसरा एक है कि नई उड़ान एक स्कीम लिस्टेड है. यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स यूपीएससी क्लियर करते हैं या फिर स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स है वो क्लियर करते हैं, या फिर रेलवे एग्जाम्स हो गए, एसएससी सीजीएल और ग्रेजुएट लेवल ये क्लियर करते हैं, तो स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है. जैसे यूपीएससी क्लियर प्रीलिम्स क्लियर करने पे स्टूडेंट को 1 लाख का स्कॉलरशिप दिया जाएगा. स्टेट लेवल के एग्जाम्स जो है स्टेट पर पब्लिक सर्विस कमीशन के कर क्लियर करते देन 50,000 का स्कॉलरशिप दिया जाएगा. और उसके बाद जो बाकी के एग्जाम्स है उसके लिए 25,000 का स्कॉलरशिप दिया जाएगा. तो हियर इज ऑल्सो गुड ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए कि वो सिविल सर्विस के लिए पढ़े, अप्लाई करें और एक अच्छा करियर बना सकते हैं. तो ये प्रेजेंटेशन. हम देख रहे थे TFWS के बारे में, ट्यूशन फीस वेवर स्कीम. सो ट्यूशन फीस वेवर स्कीम जो है वो एक तरह का रिजर्वेशन है, फिर कोटा होता है 5% का. जैसे 100 सीट है तो उसमें से 5 सीट TFWS की होती है. और इसका अवेल करने के लिए एक ही क्राइटेरिया कि आपके पास फैमिली इनकम जो है, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट विद लेस देन 8 लाख इनकम, और भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जैसे तहसीलदार ऑफिस से मिलता है या फिर मैजिस्ट्रेट हो गया. सो और दूसरा ऑप्शन ये करना रहता है कि हमें जो एप्लीकेशन जब हम अप्लाई करते हैं कैप राउंड में तभी हमें टिक करना है TFWS के लिए यस करना रहता है. और ये वैलिड है होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए और फिर इंजीनियरिंग कोर्स के लिए, डिप्लोमा डिग्री दोनों के लिए. बट यहाँ पर बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि जैसे स्टूडेंट की अगर 1 लाख रुपए फीस है टोटल फीस, तो उसमें से ट्यूशन फीस 90,000 होती है और 10,000 अदर फीस होती है. तो स्टूडेंट को सिर्फ 10,000 ही भरना पड़ेगा अगर इफ ही इज इन सिलेक्टेड इन TFWS के ऑप्शन में. अगर उसने अप्लाई किया और TFWS के मेरिट में अगर आता है देन द स्टूडेंट विल नीड टू पे ओनली 10,000. और 4 साल का जो फीस होगा 40,000 ही स्टूडेंट को पे करना रहेगा, बल्कि टोटल फीस हमारी 4 लाख थी. एक अच्छा ऑप्शन है हम जो स्टूडेंट्स को बता सकते हैं. बस इसके लिए एक ही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है कि इनकम सर्टिफिकेट. एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने से पहले हमें स्टूडेंट को बताना है, स्टूडेंट को अवेयर करना है कि वो अपना इनकम सर्टिफिकेट जल्द से जल्द बना ले ताकि दे कैन अवेल दी स्कीम्स विच आर अवेलेबल. नेक्स्ट स्लाइड. एक रिजर्वेशन है EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन, जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, या फिर ये 10% का रिजर्वेशन होता है. और ये जो है वो ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए है, और जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है वो अप्लाई कर सकते हैं रिजर्वेशन के लिए. और सब स्टेट, अगर जो स्टेट ने लेजिस्लेचर लेके आके ये इम्प्लीमेंट किया है वो स्टेट में वैलिड है. गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स है जो EWS रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इसके अंदर एक क्राइटेरिया फैमिली इनकम का है जो लेस देन 8 लाख होनी चाहिए. नेक्स्ट इज आपके पास ये सब है, जैसे लेस देन 5 एकर्स लैंड है यू कैन अप्लाई, और 1000 स्क्वायर फीट से कम का फ्लैट है तो देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई. और इसका बेनिफिट क्या है? नेक्स्ट स्लाइड. बेनिफिट ये है कि आपको एक रिजर्वेशन मिलता है 10% का एडिशनल रिजर्वेशन. ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट से अगर वो अप्लाई करते हैं तो 50% जो ओपन की सीट होती है उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं. और एडिशनली अगर उनके पास EWS सर्टिफिकेट है तो 10% रिजर्वेशन जो है कोटा उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. और ये गवर्नमेंट जॉब और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वैलिड है, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों के लिए वैलिड है. और इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि जो कट ऑफ जो अराउंड एक कोई भी कॉलेज का है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, BA स्टूडेंट, BSc स्टूडेंट का 80 पर क्लोज हुआ है, तो EWS का कट ऑफ 5% कम होता है, 10% कम 75 या 70 पर क्लोज होगा. तो इसके अंदर हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हम लो कट ऑफ में जो कॉलेज का सोच रहे हैं वो कॉलेज में हमें जाने के लिए ऑप्शन मिल पाएगा. और एक अच्छा ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स ही बना सकते हैं EWS, रिजर्व कैटेगरी के लिए नहीं है. OBC, ST, SC ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है. मुस्लिम, माइनॉरिटी कम्युनिटी, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन सब बना सकते हैं. अपर कास्ट दे कैन ऑल्सो मेक दिस इफ दे आर इन द ओपन कैटेगरी. नेक्स्ट स्लाइड.
और स्टेट गवर्नमेंट के लिए हमें पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, बट हम यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स नहीं देखेंगे। खाली जैसे एक क्लेम्स के लिए हमने ऐड किया कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट क्या है और कैसे जो फंड्स अवेलेबल है वो दिया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। एक असाइनमेंट होगा यहाँ पर, जो हमारा टीम जो है वो टीम वर्क जो हम करेंगे, तो उसमें स्टूडेंट्स के लिए जो हेल्प करना चाहते हैं, वॉलेंटियर्स के लिए, एनजीओस के लिए, या फिर इंडिविजुअल जो इस काम में एफर्ट्स लेंगे, उनके लिए कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कौन कौन सी स्कीम प्रोवाइड करती है, हम उसके ऊपर रिसर्च वर्क कंडक्ट करेंगे, ताकि और आसानी से हम हर एक स्टेट के स्टूडेंट तक स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स भी पहुंचा सके, जैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम देख रहे हैं एनएसपी पर जो अवेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड। इसका आउटकम क्या होगा? तो यार विल बी द आउटकम कि हम जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो उसमें अप्लाई कर पाएंगे, उसका बेनिफिट उठा पाएंगे और स्टूडेंट तक पहुंचा सकेंगे कि दिस आर दी ऑप्शन ओपन फॉर यू। और इससे स्टूडेंट्स का जो है रेशियो जो है हायर एजुकेशन में वो इंक्रीज होगा, स्टूडेंट का एनरोलमेंट इंक्रीज होगा, ताकि क्योंकि हमने फाइनेंशियल जो बर्डन था उसके ऊपर वर्क करके उन्हें इस स्कॉलरशिप का फायदा उठाने के लिए अप्रोच किया। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे ये पार्ट था सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके बाद हम CSR फंड्स हो गया, एनजीओ हो गया, उसके बारे में देखेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड। हियर इज फर्स्ट थिंग इज विद्या सारथी। जैसे CSR का नाम आता तो पहले हम विद्या सारथी और बडी फॉर स्टडी ये दो पर्टिकुलर वेबसाइट पर ही रिफर करते हैं। तो ये विद्या सारथी एक सिंपल प्लेटफॉर्म है जो NSDL गवर्नमेंट एजेंसी ने क्रिएट किया है, ताकि स्टूडेंट्स जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सके और एक सिंपल वे में। जैसे हमने NSP पर अप्लाई करना देखा था, वैसे सेम यहाँ पर भी अप्लाई करना है। और सिर्फ एक वेरिएशन ये है कि प्रोसेस पूरा ऑनलाइन होगा। आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहेंगे, फॉर्म फिल करना है, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर देना है। जैसे फोटो है तो फोटो अपलोड कर देना है, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, बैंक अकाउंट का पासबुक का फोटो अपलोड करना है। तो साइन अप करना है, कंप्लीट द प्रोफाइल एंड सर्च एंड अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। प्लीज ओपन द वेबसाइट। जैसे हम वेबसाइट में देख सकते हैं कि अभी करंटली देयर आर स्कॉलरशिप ओपन फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स, ITI और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है विद्या सारथी वेबसाइट पर, और सिंपल वे में हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। और राउंड द ईयर पोर्टल ओपन रहता है, हर मंथ कोई ना कोई नई स्कॉलरशिप आते रहती है। स्क्रॉल डाउन। यस, डाउन। विद्या सारथी वेबसाइट है, NSDL शिक्षा सहयोग स्कीम दिया हुआ है। हियर आर द स्कीम लिस्टेड। और जो क्लोज स्कीम हो गई है, कैन यू क्लिक ऑन द क्लोज स्कीम? यस यस, यहाँ देख सकते हैं कि जो स्कीम क्लोज हो गई है उसके बारे में दिया हुआ है। स्क्रॉल डाउन। और अराउंड 1 लाख तक का इस वेबसाइट पर फंड स्टूडेंट को मिला हुआ है। जैसे टाटा की तरफ से जो लिस्टेड है कि 1 लाख स्कॉलरशिप फॉर गर्ल स्टूडेंट, और बहुत सारी स्कॉलरशिप जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होती है। अलग अलग कंपनीज यहाँ पर अपना CSR फंड स्टूडेंट्स के एजुकेशन के लिए प्रोवाइड करती है। तो हमें थोड़ा सा एफर्ट्स लेके स्टूडेंट का, हर एक स्टूडेंट का हमें ये प्रोफाइल बनाना है। हमारे पास जो भी स्टूडेंट, हमारा टारगेटेड स्टूडेंट है 10,000 स्टूडेंट या फिर उससे ज़्यादा, हम हर स्टूडेंट का प्रोफाइल बनाए विद्या सारथी और बडी फॉर स्टडी, ये दो वेबसाइट पर। टुडे प्रेजेंटेशन प्लीज, ताकि स्टूडेंट जो है वो इस स्कीम्स में अप्लाई कर पाए और उन्हें फाइनेंशियली को स्कॉलरशिप मिल सके। नेक्स्ट स्लाइड। यस, नेक्स्ट। बडी फॉर स्टडी जैसे डिस्कस किया, सेम विद्या सारथी की तरह ही पोर्टल है जिस पर हम अप्लाई कर सकते हैं CSR फंड्स के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। अभी करंटली एक स्कॉलरशिप ओपन है कोलगेट की, कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशन, और ये हम देख सकते हैं कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ओपन दी वेबसाइट प्लीज। और सेम जैसे प्रोसेस है विद्या सारथी का, वैसे ही यहाँ पर स्टूडेंट्स बडी फॉर स्टडी में अप्लाई कर सकते हैं। here is given, can you click on register? Upward. Yes. यहाँ पर एक सिंपल पहला शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है। ये सब फॉर्म फिल करके हमें रजिस्टर करना है और प्रोफाइल कंप्लीट करना है।
on the Vidyasarthi, can open the tab of Vidyasarthi. Yes, यहाँ पर भी हमें रजिस्टर करने का सिंपल साइन अप का ऑप्शन है. आधार कार्ड पे जैसे नेम है हमें वैसे ऐड करके और फिर बाद में कंप्लीट डिटेल्स ऐड करना होगा और एक सिंपल फॉर्म हम भर के स्टूडेंट तक स्कॉलरशिप स्कीम जो है अवेलेबल वो हम पहुंचा सकते हैं. सो वी शुड वर्क ऑन इट. हमें कलेक्टिवली आकर इस चीज़ पर काम करना होगा. स्टूडेंट्स के फॉर्म भरने होंगे तभी जाके हम स्टूडेंट्स तक जो फाइनेंस का हर्डल है, फाइनेंस बर्डन उनसे दूर कर सकते हैं और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो है हम उस पर वर्क करेंगे तभी स्टूडेंट का बेनिफिट होगा. नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, प्लीज ओपन द प्रेजेंटेशन. यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, टाटा ट्रस्ट. सेम जैसे हमने देखा था कि विद्यासारथी या बडी फॉर स्टडी वेबसाइट पर स्कॉलरशिप ओपन है, वैसे ही कोई ट्रस्ट या फिर सीएसआर कंपनी जो है सीएसआर फंड खुद की वेबसाइट के थ्रू भी प्रोवाइड करती है. टाटा ट्रस्ट हो गया और सीताराम जिंदाल स्कॉलरशिप हो गई, ओपी जेम्स हो गया. ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो खुद की वेबसाइट के थ्रू स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं. तो टाटा ट्रस्ट प्रोवाइड स्कॉलरशिप फॉर स्कूल और कॉलेजेस के लिए प्रोवाइड करती है, डिग्री कोर्स के लिए भी होता है. ओपन दी वेबसाइट ऑफ टाटा ट्रस्ट. तो टाटा ट्रस्ट पर और भी बहुत सारे स्कीम्स लिस्टेड है जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी है और फॉरेन एजुकेशन के लिए जीएन डाटा एंडोमेंट है, उसमें स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं. फिर दे वांट टू अप्लाई फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज इन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स. यहाँ पर मींस ग्रांट में दिया हुआ कि अभी भी स्कॉलरशिप का फॉर्म ओपन है, नेक्स्ट ईयर जनवरी तक ओपन है. सो स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दिस. और सेम जैसे हमने बात किया था कि पूरा ऑनलाइन फॉर्म है. ये एफर्ट जो हमें चाहिए कि स्टूडेंट का फॉर्म फिल करना इसीलिए चाहिए कि जितने भी स्कीम्स है आजकल, जितने भी फॉर्म्स है सब ऑनलाइन है, ऑफलाइन बहुत कम है या फिर नहीं है. सो इसके लिए हमारे पास भी एक इजी वे है कि स्टूडेंट का ऑनलाइन फॉर्म फिल करे और ज़्यादा हमारे पास बर्डन भी नहीं आएगा कि उसे पोस्ट करना है, कहीं सबमिट करना है. सो एक बेटर वे में हम स्टूडेंट की हेल्प भी कर पाएंगे और हर एक पर्टिकुलर स्कीम्स के बारे में हमें स्कॉलरशिप स्टूडेंट का एप्लीकेशन भी हम कर पाएंगे. टू दी वेबसाइट, टू दी प्रेजेंटेशन प्लीज. सो इसी तरह हम और भी स्कॉलरशिप देखेंगे कि जो गर्ल्स के लिए होती है या फिर फॉरेन एजुकेशन के लिए है. सीमा खतीब इज फॉर महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स और इसका ऑफलाइन फॉर्म होता है जैसे हमने डिस्कस किया था. तो एक पर्टिकुलर वेबसाइट है जिसका हमें फॉर्म भरना है, उसके बाद फिर सबमिट करना है जो मेडले फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनकी ऑफिस पर जो मुंबई में है. इट्स फॉर ओनली महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट. ऐसी पर्टिकुलर स्कॉलरशिप भी होती है जो पर्टिकुलर स्टेट के लिए होती है, एक स्टेट के लिए या फिर 2-3 स्टेट्स के लिए होती है. जैसे विद्याधन, इट्स फॉर साउथ इंडिया एंड महाराष्ट्र, गुजरात. तो हम जो हमारा वेबिनार होगा इसके बाद का डिटेल वे में हम हर एक पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के बारे में देखेंगे, उसके अंदर ये सब हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो हियर इज द स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स. जैसे हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गर्ल्स स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही थी और वैसे सीएसआर फंड जो है फेयर एंड लवली उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं. सब कोर्स के लिए अवेलेबल है टिल दी पीएचडी. उसके बाद एडिशनली जो है सीएस का कोचिंग हो गया, फिर जितने भी एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग है उसके लिए भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है फेयर एंड लवली की तरफ से. एडोप इज फॉर इंजीनियरिंग गर्ल्स स्टूडेंट. सीमेंस में 50% रिजर्व है गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए, ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है. और डॉक्टर रेड्डी ये बीएससी स्टूडेंट्स के लिए. नेक्स्ट स्लाइड. और इसका नाम सशक्त स्कॉलरशिप है, सशक्त. और जैसे हमने इंस्पायर देखा था, सेम इंस्पायर स्कॉलरशिप ही है. और बट कंडीशन ये है कि इंस्पायर में हम कोई भी यूनिवर्सिटी में कोई भी कॉलेज में पढ़ सकते हैं इन इंडिया. बट और हमें 80,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा टिल दी 5 years. और यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी सशक्त स्कॉलरशिप में डिफरेंस है कि हमें जो 20 लिस्टेड कॉलेजेस है 6 मेट्रो सिटीज में उसमें एडमिशन लेना है, तभी जाके हम ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे. और सेम 80,000 का हमें स्कॉलरशिप यहाँ पर भी मिलेगा डॉक्टर रेड्डी की तरफ से, फाउंडेशन की तरफ से. और इसका ड्यूरेशन 3 साल का होगा और ये गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए. सो इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स के वो एजुकेशन में इनरोलमेंट करे और हायर एजुकेशन में भी आए. और हम आई रिक्वेस्ट कि गर्ल्स को भी एजुकेशन की तरफ हम बढ़ाएं और जो अवेलेबल स्कीम्स है उसका फायदा उठाए.
नेक्स्ट स्लाइड। यस, जैसे हमने डिस्कस किया था, वी विल बी डिस्कसिंग हायर एजुकेशन के बारे में। सो फॉरेन कंट्रीज में जाके अगर स्टूडेंट्स को पढ़ना है, देन ऑल्सो देयर आर स्कॉलरशिप ऑप्शन ओपन, जो ISDB जैसे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जेद्दा, उसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है। टाटा ट्रस्ट हो गया, केसी महिंद्रा, या फिर पढ़ो प्रदेश स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है माइनॉरिटी कम्युनिटी स्टूडेंट्स के लिए, और नरोत्तम सेक्चर, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे पढ़ो प्रदेश इज फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी है माइनॉरिटी कम्युनिटी स्टूडेंट्स के लिए। कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर रहेगा। जैसे 2 साल का मास्टर्स कोर्स है तो 3 साल के हमें इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी जो हमने लोन अमाउंट लिया है उस पर, और इसे डायरेक्टली बैंक से अप्लाई करना है। बैंक में जाके आपको बताना है कि आई वांट टू अप्लाई फॉर पढ़ो प्रदेश और एक मैं माइनॉरिटी स्टूडेंट हूँ, तब जाके आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। केसी महिंद्रा और आगे हम देखेंगे इट्स ISDB इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जेद्दा की स्कॉलरशिप जो है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। UG PG और स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट स्लाइड। केसी महिंद्रा भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है 8 लाख का, और JN टाटा एंडोमेंट्स प्रोवाइड 10 लाख की स्कॉलरशिप, और दोनों भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए है। और इंटरेस्ट फ्री लोन होता है, आपको जितना अमाउंट लिया उतना रीपे करना है। और जितने भी फॉर्म्स होते हैं फॉरेन एजुकेशन के, इट्स ओपन फॉर्म फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी टिल द मार्च। आपको ये 3 महीने में आपका एप्लीकेशन कंप्लीट करना है, वरना आप स्टूडेंट जो है वो बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे ये सब ट्रस्ट के जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स है वो उसमें अप्लाई करने का। अगर हम डिले करते हैं, हम बाद में मई में याद आता है कि हमें अभी लोन लेना है, हमारा ऑफर लेटर आ गया है फॉरेन यूनिवर्सिटी का, देन इट्स नॉट अ गुड आइडिया। हमें पहले से प्लानिंग रखनी होगी कि हमें फॉरेन एजुकेशन में फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ना है, तो हमें ये स्कॉलरशिप अवेल करना है। इसके लिए हम डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करें और जनवरी में जब फॉर्म ओपन होगा तब अप्लाई कीजिए। और एक हम जो मिस कर गए वो है नरोत्तम सेक्शरिया। नरोत्तम प्रोवाइड 20 लाख रुपीज इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर इंडिया एंड अब्रॉड। इंडिया में पढ़ेगा तो भी आपको मिलेगा, अब्रॉड में जाना है तो भी, बट केसी महिंद्रा, JN टाटा ये सब अब्रॉड के लिए है। नेक्स्ट स्लाइड। यस, नरोत्तम इज गिवन हियर फॉर इंडिया एंड अब्रॉड, बाकी जो है वो सब फॉरेन के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। ऐसे बहुत सारे स्कीम्स जो है वो अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए, और हर एक में का हम डिस्कशन जब डिटेल डिस्कशन होगा नेक्स्ट वेबिनार में, हम उसमें देखेंगे हर एक स्कीम्स के बारे में। ये सब बस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था ताकि हम स्कीम्स के बारे में जान पाए, और जो ऑप्शन ओपन है उसके बारे में देख पाए कि ये बहुत सारे ऑप्शन हमारे लिए ओपन है और स्टूडेंट तक हमें ये पहुंचाना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत सारे स्कॉलरशिप है, मेडिकल के लिए भी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जमियत उलेमा जैसे जो बहुत सारे NGO है, जितनी इल्मा, जमियत उलेमा, खिदमत ट्रस्ट, मैस्को, ऐसे बहुत सारे ट्रस्ट जो है वो भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, और इनके भी फॉर्म हम स्टूडेंट को भरने बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, सो हियर इज द थिंग कि हम अभी ये सब जितना भी हमने कंटेंट देखा वो अवेल कैसे करेंगे। हमें सिंपली स्टूडेंट्स का प्रोफाइल जो है वो विद्यासारथी और बॉडी फॉर स्टडी पर बनाना होगा, और यहाँ पर हमें अपडेट होना रहेगा हर वक्त, एवरी मंथ। जैसे ये नई स्कॉलरशिप, नई कोई स्कीम आती है तो हम उसमें अप्लाई करें और स्टूडेंट को ये स्कीम्स के बारे में बता पाए। और नेक्स्ट स्लाइड। इसका फ़ायदा हमें स्टूडेंट्स को बहुत होगा, बिकॉज जब अप्लाई करेंगे तो इसका चांसेस भी अच्छा रहता है CSR फंड का मिलने का, और एक अच्छा खासा अमाउंट स्टूडेंट को मिलता है। तो ये वेबसाइट जो है वो हम देख सकते हैं, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इट्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाकी का स्टेट गवर्नमेंट का होता है। एंड देन वी हैव 2 मोर वेबसाइट, बड़ी फर्स्ट इन विद्यासारथी, एंड इसके बाद जो है स्कॉलरशिप का पेज जो है स्कॉल UFA, और वी कैन फॉलो AMP इंडिया। जैसे हमारा एक और टास्क होगा इस प्रेजेंटेशन के बाद, इस ट्रेनिंग वेबिनार के बाद, कि हम एक वेबसाइट पर, AMP की वेबसाइट पर एक सेक्शन होगा कि स्टूडेंट जैसे अपना डिटेल फिल करे उसे रिलेवेंट स्कॉलरशिप जो है वो शो हो जाएगी, और उसके साथ में वो देख सकते हैं कि कौन सी स्कॉलरशिप ओपन है और उसी तरह वो अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। So here together we can make a difference by coming up together, और कलेक्टिव हमारा एफर्ट्स होगा, उस कलेक्टिव एफर्ट से हम
स्टूडेंट की हेल्प कर पाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपडेट होना पड़ेगा, हमें खुद अवेयर होना पड़ेगा, और ताकि हम स्टूडेंट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। तो ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम हर एक स्कॉलरशिप के बारे में देखेंगे, और उसके बाद वी विल बी हैविंग डिस्ट्रिक्ट वॉलंटियर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ताकि स्टूडेंट जो है पर्टिकुलर स्टूडेंट का अगर कुछ क्वेरीज आती है तो वो हम वहाँ तक उन्हें डिस्ट्रिक्ट वॉलंटियर के पास डाइवर्ट कर पाए, या फिर जो लोकली अवेलेबल उन तक। और एनजीओ से रिक्वेस्ट है कि दे शुड स्टार्ट फॉर्म फिलिंग सेंटर, जस्ट रिक्वायर्ड इज पीसी, इंटरनेट कनेक्शन और प्रिंटर इफ पॉसिबल। पीसी और इंटरनेट से भी काम हो जाएगा। देन वी विल बी गिविंग एवरी मंथ, वी विल बी हैविंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, और इसके साथ जो है विल बी हैविंग द सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर वॉलंटियर्स जो ये एक साल में काम कर पाएगा। और टुगेदर वी कैन डू वेरी वेल फॉर द स्टूडेंट्स। और सबसे रिक्वेस्ट है कि साथ में आए और इस फील्ड पर, स्कॉलरशिप इनिशिएटिव पर काम करें। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, जज़ाकल्लाह एवरीवन, थैंक यू। और हैंड ओवर टू रज़ाक भाई, और शहजाद भाई कैन कंटिन्यू। Thank you so much, Amir Bhai, for such an insightful session. We have many questions which have been raised by the attendees. We'll take a Q&A session. I'll just keep asking question one by one, so you can start addressing to them. So I've got a question from Adnan Kachi. What about medical students for Maharashtra state? Is it available for them, scholarships? Amir Nurle bhai? You are on a mute. यस, सॉरी। ओके, तो पहला ऑप्शन ये कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है फॉर द माइनॉरिटी स्टूडेंट्स 25,000। और उसके अलावा अगर स्टूडेंट आपको अप्लाई करना है ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, वो महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट ईबीसी में अप्लाई कर सकते हैं। ईबीसी स्कॉलरशिप जो है राज्य श्री शाहू महाराज स्कॉलरशिप, उसके अंदर 50% ऑफ द ट्यूशन फीस मिलेगा, या फिर कंसेशन मिलेगा। जैसे हम प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो 10 लाख ट्यूशन फी, 10 लाख फीस है, उसमें से 8 लाख ट्यूशन फीस है, तो 50% ऑफ ट्यूशन फीस 4 लाख का कंसेशन मिलेगा, बाकी का हम 6 लाख का फीस हमें भरना होगा। या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाते तो 70,000 फीस होती है, उसमें से ट्यूशन फीस विल बी अराउंड 50,000, तो स्टूडेंट को 25,000 का कंसेशन मिलेगा। सो देयर आर अदर स्कॉलरशिप लाइक एफएफपी, फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस, या फिर ओम ज्योति स्कॉलरशिप हो गया, फेडरल बैंक, बहुत सारी स्कॉलरशिप है जो मेडिकल के लिए है। एंड रेस्ट के हर एक स्टूडेंट के लिए, सब कोर्सेज के लिए विद्या सारथी और बडी फॉर स्टडी अवेलेबल ही है, तो वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। Okay, thank you. I have a question from Zaid Sharif. What is the salary limit for merit cum means scholarship? Merit cum means is offered by government of India as well as state government. For government of India, it's 2.5 lakhs. Income less than 2.5 lakhs, and for state government, it varies from state to state. Like Maharashtra state government has income less than 8 lakhs, 8 lakh generally. For स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 2.5 लाख, 2.5 लाख से कम है तो अप्लाई कर सकते हैं। Thank you. I have a question from Mohammed Naina. EWS, are Muslims also eligible for this scheme if they are not in OBC category? Can they apply under EWS? It's open for open category, general category like upper caste as well as minority community, Muslim, Buddhist, Sikh, Christian, Parsi. So student can apply if they are eligible. और स्टेट, हर एक स्टेट के पर्टिकुलर कंडीशंस है, इनकम लेस देन 8 लाख, तो वो सेटिस्फाई होनी चाहिए इसके साथ में, और जो कंडीशन स्टेट ने रखी है वो सेटिस्फाई करके स्टूडेंट कैन मेक। और ये भी, इसमें भी 2 सर्टिफिकेट बनता है। एक सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स या जो एजुकेशन है उसमें अप्लाई होता है, और स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होता है। हमें 2 सर्टिफिकेट बनाना होता है EWS का। Shehzad bhai, this con call is for NGO and volunteers.
जो स्कॉलरशिप स्पेसिफिक जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उनको एक्चुअली आमिर नूरले का पिछला जो सेशन हुआ था उसका वीडियो रेफर करना होगा। अभी अगर कोई एनजीओ और वॉलंटियर के क्वेश्चन होंगे ना, प्लीज टेक दोस क्वेश्चन, हाउ टू वर्क टुगेदर एंड हाउ टू हेल्प स्टूडेंट्स। कलेक्टिव एफर्ट हम कैसे ला पाएंगे, बिकॉज पर्टिकुलर स्कॉलरशिप या फिर कुछ क्वेरीज है तो हम पहले का वीडियो जो है वो रिफर कर सकते हैं, या फिर पोस्ट अवेलेबल है फेसबुक पेज पर, हर एक स्कॉलरशिप के बारे में हम वो रीड कर सकते हैं। ये पहले क्वेरीज, उसके बाद आती है तो वी कैन हैव अ चैट ऑन व्हाट्सएप और कॉल एंड डिस्कस। Okay. So let me see if any question raised in that scenario. Just a moment. There is one question from Tansila Siddiqui. If someone is jobless, अगर कोई बेरोजगार हो तो उसका इनकम सर्टिफिकेट हम कैसे बनाएंगे? इनकम सर्टिफिकेट जैसे तहसीलदार का ऑप्शन जो ओपन था, मैंने बताया था, तो उसमें एक फॉर्म होता है जिसके अंदर जो जॉबलेस है या फिर जिससे सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए होता है, वो फॉर्म भरना रहता है। उसके अंदर बेसिक डिटेल्स पूछता है, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, और फैमिली में कितने लोग हैं, और फैमिली में आपके जो घर में क्या क्या अवेलेबल है, फ्रिज, टीवी, जो कुछ भी अवेलेबल है वो डिटेल्स फिल करनी होती है। तो जो तलाटी फॉर्म बोलते हैं, तलाटी पंचनामा बोलते हैं इसे, तो तलाटी पंचनामा हम करके इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। Thank you. Another question, if we want to support all the students, what would be our next step? How can we get help from your end? So I believe it is नेक्स्ट from स्टेप इज कि हम yeah. जैसे हमने यहाँ पर शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन में देखा है कि जितने सारे स्कीम्स अवेलेबल हैं, तो इन डेप्थ में हम देखेंगे हर एक पर्टिकुलर स्कीम के बारे में कैसे अप्लाई करना है। और उसके बाद हम जैसे डिस्ट्रिक्ट का बताया कि डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में वॉलंटियर्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम स्टूडेंट का ग्रुप बना के वो वॉलंटियर के पास देंगे ताकि वो स्टूडेंट का फॉर्म फिल कर सके और स्टूडेंट का कंटिन्यूसली मेंटर करे और उन्हें गाइड करे स्कॉलरशिप के बारे में या फिर उनके करियर के बारे में। तो रज़ाक भाई कैन एक्सप्लेन इफ यू वांट टू। Razak bhai? Can you repeat the question, please? The question was, if we want to go ahead and help the students, what help will they get from our end? ओके हमने आपको एक लिंक शेयर किया है, आप लोगों को उस लिंक पे रजिस्टर करना होगा। मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, प्लस मैंने एफबी पे भी अपडेट किया है। आपको लिंक पे शेयर करना होगा। जितने लोग भी रजिस्टर्ड होंगे उस लिंक पे, हम लोग उनका एक स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बाद हम लोग कंटिन्यूसली मंथ ऑन मंथ जो नए स्कॉलरशिप आ रहे हैं उनका अपडेट देते रहेंगे। इसके अलावा हम लोग हर 15 दिन में, 1 महीने में एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे जहां पर आपको बताया जाएगा जो आने वाली नई स्कॉलरशिप है उसमें क्या डिफरेंस है एंड कैसे अप्लाई करना है। और सारी जितनी भी स्कॉलरशिप, अभी आमिर नूरले भाई ने जितनी स्कॉलरशिप आपको बताई है, ये स्पेसिफिकली हम लोग ने कोशिश की है कि टॉप 15 स्कॉलरशिप को पिक किया जाए और आपको उसके बारे में बताया जाए। हालांकि स्कॉलरशिप तो 1500 स्कॉलरशिप है, वी कांट कवर एवरीथिंग टुडे। तो हम लोग ने वो बड़ी स्कॉलरशिप ली है, मेजॉरिटी मोर देन 50% ऑफ द फंड्स आर अवेलेबल राइट नाउ, वो हमने आपको दिखाई है। बट इसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप हो जाए तो स्टेप ये होगा कि हम लोग आपका रेगुलरली ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे जहां आपको स्पेसिफिक स्कॉलरशिप में किस तरह से बच्चों को हेल्प करना वो किया जाएगा। तो एक तो आपको ट्रेन किया जाएगा, दूसरा हम लोग को बहुत सारे बच्चों के एप्लीकेशंस आते हैं स्कॉलरशिप के लिए, हम लोग वो बच्चों को आपके थ्रू गाइड करेंगे कि आप लोग उनको हेल्प कीजिए, उनको गाइड कीजिए, उनको मेंटर कीजिए। हमें बच्चों को हेल्प करना है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाने वाला। जैसे मैंने आपको बताया, हफ्ते में 2 घंटा आपको देना होगा। बहुत सारी चीज ईमेल पे आती है तो हमको ईमेल रिप्लाई करना है, कहीं कहीं बच्चे से हमको बात करना होगा ताकि उसको समझा सके। सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है, सेंट्रली नहीं हो सकता है ये, उसका रीजन ये है कि लोकल लैंग्वेज में बात करना इम्पोर्टेंट होता है। तो मुझे अगर यहाँ से कोई, अगर वेस्ट बंगाल का बच्चे ने अप्लाई किया है तो वेस्ट बंगाल का जो वॉलंटियर होगा वो उसको बेटर वे में हेल्प कर पाएगा। तो रीजनल लैंग्वेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हम लोग आपको एक तो ट्रेनिंग देंगे, आपको अपडेट देंगे, सेकेंड हम लोग जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं उनको आपके थ्रू एनरूट करेंगे ताकि आप लोग उसको हेल्प कर सके। इसके अलावा आप अपने ज्योग्राफी में, अपने इलाके में, अपने स्कूल में जाके वहां पर ही बच्चों को हेल्प कर सकते हैं।
इस प्रोजेक्ट के थ्रू अगर आप एएमपी को अगर जुड़ते हैं तो एएमपी का एक प्रोजेक्ट चलता है जिसको हम लोग स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। उस प्रोजेक्ट में हम लोग स्कूल में जाके बच्चों को करियर डेवलपमेंट के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं। तो इसी तरह हम लोग स्कॉलरशिप के भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, जहां पर अगर आपके पास टाइम हो तो किसी सैटरडे को आप भी जा सकते हैं, वो स्कूल में जाके आप स्कॉलरशिप पे ट्रेनिंग दे सकते हैं कि बच्चे लोग आप में से जितने लोग हैं उनको हायर एजुकेशन में अगर जाना है, स्कॉलरशिप के बारे में जानना है, तो हम आपको गाइड करेंगे, आपको मेंटर करेंगे आपको। तो ये सारी चीज है, एक आपकी पर्सनल कैपेसिटी बिल्डिंग, आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, एक काम वो होगा, दूसरा होगा बच्चों को आपसे कनेक्ट करना और आपको बच्चों तक लेके जाना। तो ये 2 तरीके हैं, इसमें दोनों चीज है। कुछ लोग कहेंगे कि ना स्पेशली फीमेल्स कहेंगे हम बाहर नहीं जा सकते, हमको घर पे अगर जो मेंटरिंग करना है हम कर सकते हैं, यू कैन डू दैट ऑल्सो। यू कैन इवन चूज करके ना मुझे सिर्फ फीमेल को मेंटरिंग करना है, वी कैन इवन डू दैट ऑल्सो विथ यू, राइट। तो आपको चूज करके आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन पास की जाएगी, आपको क्यू दिया जाएगा कि कहाँ पर कौन से बच्चे को हेल्प करना है, आप वो बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। तो एक हमारे थ्रू हम आपको बच्चे देंगे, आप उनको हेल्प कर सकते हैं। दूसरे आप खुद अपने फैमिली में, अपने बिल्डिंग में, अपने इलाकों में, अपने स्कूल में वहां पर बच्चों को हेल्प कर पाएंगे। तो ये 1 साल का जो टाइम होगा इंशाल्लाह, हम जो 10,000 बच्चों को ट्रेन कर हेल्प करने की बात कर रहे हैं, ये 1 साल के अंदर आप खुद इतने ट्रेन हो जाएंगे कि आने वाले टाइम से आप खुद एक पैशन समझ के इसको आगे लेके जाके पाएंगे और आप लोग हेल्प कर पाएंगे। Thank you so much. Shahzad bhai, there are 2 special questions. So should I ask that? Yes, yes, please. Please, उसमें Anil. एक there is one question कि income certificate for father is enough or it should be for students? Father के नाम पे होना चाहिए कि student के नाम पे होना चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं, right? तो इट्स लाइक इनकम सर्टिफिकेट मोहम्मद मुश्ताक अली का क्वेश्चन था, सारे लोगों के लिए बहुत रिलेवेंट है कि वो फादर के नाम पर होता है, फादर या फिर जो अर्निंग मेंबर है वो फैमिली में अर्निंग मेंबर या फैमिली में जो अर्निंग मेंबर है उसका, जिस पर आप डिपेंडेंट हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है मिस्टर उसामत की तरफ से, विल यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर रिलेटेड टू इनकम? क्रीमी लेयर जो है वो ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए लगता है, एनसीएल सर्टिफिकेट होता है ना। नॉन क्रीमी लेयर में सो एनसीएल सर्टिफिकेट, जिसका ओबीसी का सर्टिफिकेट है उन्हें एनसीएल सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। तो ये कहाँ से मिलेगा, ये कैसे बनेगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से बनता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से। सो तहसीलदार बेसिकली ऑफिस वहाँ से क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स, और वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से, आपके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से बनाए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें ऐसा है कि ईडब्ल्यूएस के लिए ओबीसीज एलिजिबल हैं कि नहीं है, और मुस्लिम्स एलिजिबल हैं कि नहीं है? ओबीसी स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। ओबीसी पर्टिकुलरली 27% रिजर्वेशन में आता है, 50% रिजर्वेशन में जो रिजर्वेशन है एसटी एससी ओबीसी के लिए उसके अंदर आता है। बट जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है वो ओपन है, ओपन कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, जिसके अंदर मुस्लिम्स भी आते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी आती है, पूरी अपर कास्ट आते हैं। सो ये अदर देन ओबीसी सारे लोग आते हैं? हाँ, अदर देन रिजर्व कैटेगरी सारे लोग आ गए यहाँ पर। अच्छा, तो नॉट ओनली ओबीसी, जिनको भी रिजर्वेशन है उनको छोड़ के सारे ही लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स बनवा सकते हैं। और ये भी एसटी को छोड़ के बाकी लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से बनेगा? यस, ये भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से ही बनता है। ओके, तो ये भी, और अगर जैसे मैंने बताया कि ऑनलाइन प्रोसेस भी है, तो ऑनलाइन प्रोसेस भी एप्लीकेबल है। अगर इफ दे कैन, जैसे अथराइज एजेंट है महाई सेवा केंद्र और आपले सरकार वेबसाइट है, वैसे स्टेट का अगर ऑनलाइन पोर्टल है तो दे कैन मेक फ्रॉम ऑनलाइन पोर्टल आल्सो। सो बेसिक आंसर ये है कि ये ऑनलाइन भी होता है या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से भी होता है। आप अपने स्टेट में ऑनलाइन ऑप्शन देखिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए अगर ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स अलग अलग स्टेट्स में कैसे बनती हैं, वी विल ट्राई टू प्रोवाइड दैट एज वेल इंशाल्लाह। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं नूरुल्लाह साहब? रेजिडेंशियल प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ और इनकम सर्टिफिकेट लेस देन 8 लाख। इनकम सर्टिफिकेट आपको अलग से बनाना नहीं पड़ता है। जैसे आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं वहाँ पर आपको तलाटी पंचनामा, जैसे एक क्वेश्चन था इससे पहले जॉबलेस के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो लगता है, वही सेम तलाटी पंचनामा ईडब्ल्यूएस के लिए अटैच करना रहता है और आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाता है। बट एडिशनली स्टेट के ऊपर है डिपेंड कि वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या ले ईडब्ल्यूएस के लिए। जैसे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट एक एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगती है कि जो महाराष्ट्र स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में 1967 से पहले से रह रहे, 1967 के पहले से अगर जो रहते हैं उनके पास रेजिडेंशियल प्रूफ है तभी बना सकते हैं। तो अगर ये डॉक्यूमेंट किसी स्टूडेंट के पास है महाराष्ट्र स्टेट के तो ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा। ऐसे स्टेट, अलग अलग स्टेट का कंडीशंस है, उस हिसाब से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हमें बनाना रहेगा।
रेसिडेंशियल प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड और रेशन कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, ये सब जो हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल होते हैं, रेसिडेंशियल एज वेल एज आइडेंटिटी प्रूफ, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। उसके अलावा एडिशनल हमें तलाटी पंचनामा लगता है जो इनकम क्राइटेरिया हमारा शो करता है, और या फिर ITR शो कर सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, वो अटैच कर सकते हैं। और स्टेट ने अगर कुछ कंडीशन अप्लाई किया हुआ है, जैसे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने 1967 का डॉक्यूमेंट मांगा है, तो वो अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सबसे पहला क्वेश्चन आया था किसी का, क्वेश्चन से ज्यादा वो सजेशन है, तो आप अगर उस पर अपना ओपिनियन दें कि मोस्ट ऑफ द ड्रॉपआउट्स ऑफ आवर कम्युनिटी आर फ्रॉम 1st to 5th स्टैंडर्ड, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइनॉरिटी कम्युनिटी स्कॉलरशिप स्टार्ट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 6th ऑनवर्ड्स, सो व्हाट कैन वी डू ऑन दैट? कि हम लोग गवर्नमेंट से इसके लिए कोई बात कर सकते हैं या क्या ऑप्शंस इस पर हो सकते हैं? मिस्टर आफाक फ्रॉम भोपाल हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन। Okay, so can you suggest or can you talk about why the dropout क्यों है स्कूल लेवल पर, इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? नहीं, उनका सिंपल क्वेश्चन ये है कि अगर वो नहीं है तो वो पहले, अगर उसको 6 स्टैंडर्ड से पहले भी अगर स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, तो पहला ऑप्शन ये है कि ड्रॉप आउट जो है वो इसके वजह से कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और उनकी फीस ज्यादा होगी, यही हो सकता है अगर ड्रॉप आउट का कंडीशन है तो उसके लिए बेटर ऑप्शन है कि हम RT में एडमिशन लें। स्टूडेंट का एडमिशन जो होता है वो RT में कराए, राइट टू एजुकेशन का 25% का जो कोटा आता है उसके अंदर एडमिशन कराए। तो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक एजुकेशन तो फ्री है उसमें, तो उसके अंदर ड्रॉप आउट का चांसेस आएगा ही नहीं क्लास 8 तक। और क्लास 8 के बाद जैसे हमने देखा कि पर्टिकुलर स्कीम्स भी अवेलेबल, बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल हो जाती है 9 से लेके, जैसे विद्या सारथी पर है, बडी फॉर स्टडी पर है, या फिर मौलाना आजाद की गर्ल्स स्टूडेंट के लिए है। तो वी हैव ऑप्शन फॉर RT फॉर स्कूल लेवल, और उसके बाद जूनियर कॉलेज के लिए हमारे पास स्कॉलरशिप ऑप्शन ओपन ही है बहुत सारे। ओके, ठीक है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ऐसा है कि जो जिन वेबसाइट्स के बारे में आपने जिक्र किया उसकी लिस्ट अगर हमारे साथ शेयर कर दें, अगर PPT हमारे साथ शेयर कर दें, तो उसके लिए आप मैं आंसर कर दूं अगर आप बोलें तो ये सारी वेबसाइट्स की लिंक हम लोग शेयर करेंगे, मैक्सिमम ऑप्शंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इंडिविजुअली जब भी कोई स्कॉलरशिप आएगी हम कोशिश करेंगे कि आप सबके साथ उसको शेयर किया जाए। तो आप हमारे ऑफिस से, AMP ऑफिस से आने वाले व्हाट्सएप पर ध्यान दें, वो इन्फॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल्स प्रोवाइड करते रहेंगे हम लोग। और इसके अलावा बहुत सारे लोग PPT की बात कर रहे हैं, तो वी विल सी इफ PPT कैन बी शेयर्ड। अदरवाइज इन्फॉर्मेशन PPT में जितनी भी दी गई है वो हम आप सब लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, सो वी विल कीप शेयरिंग दिस। सो डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन शहजाद भाई? हाँ, मेरे पे एक क्वेश्चन ऐसा था कि जो 2 वेबसाइट है, बडी फॉर स्टडी और विद्या सारथी, इफ वी हेल्प स्टूडेंट टू गेट रजिस्टर ऑन दैट वेबसाइट, विल स्टूडेंट keep getting the updates from those website? ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन आता है स्टूडेंट को। जी आवाज नहीं आई यार मेरे को। ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन मिलता है स्टूडेंट को, दोनों वेबसाइट। ओके, नहीं अपडेट्स आते रहेंगे, जो स्कॉलरशिप अगर कुछ आती है तो उन लोगों को ऐसे कुछ अपडेट्स मिलेंगे? इसके अंदर कैसा है कि आपने प्रोफाइल बनाया, तो प्रोफाइल में जैसे अभी क्लास 12 लिखा हुआ है, तो क्लास 12 की अगर कोई नई स्कीम आ गई, जैसे ये मंथ में कोई नई स्कीम आ गई, तो देन दे विल नोटिफाई इन द ईमेल, दिस इज द स्कॉलरशिप ओपन नाउ, यू कैन अप्लाई, वैसा। बट बेटर ऑप्शन ये है कि हम रेगुलरली एवरी मंथ एक बार, महीने में एक बार वो वेबसाइट पे विजिट करें और खुद ही देख ले, कभी ईमेल मिस हो गया, स्पैम में चले गया, तो बेटर है कि हम डायरेक्टली ओपन करके देख ले, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, जस्ट अ क्लिक अवे। जी, सो वेरी नाइस आमिर भाई, बोलिए। Yeah, we have covered all the questions, Amir bhai. इसके एडिशन में एक पॉइंट खाली ये है कि हम लोगों ने जो AMP की एक लिंक शेयर की जब भी सेशन शुरू हुआ था चैट में, उस पर हम लोग जो है लगातार ये सारी स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन वी विल ट्राई टू अपलोड एज मच एज पॉसिबल। हम लोग वो सारी लिंक्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे वेबसाइट पर, आपके साथ व्हाट्सएप पर और ईमेल पर। अब आप लोगों की ये ड्यूटी है कि आप लोग जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जी शहजाद भाई। जी आमिर भाई, बिफोर एंडिंग द सेशन आई रिक्वेस्ट यू टू थोड़ा बात कर ले आप। इसके अंदर काफ़ी सारे NGOs वाले भी हैं जो ज्वाइन किए हैं माशाल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ भाई, और आप सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने आज का सेशन अटेंड किया। आज का सेशन खासतौर पे NGOs के लिए है या उन वॉलंटियर्स के लिए जो लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। तो उसका 2 तरीका है बेसिकली, एक तो स्टूडेंट्स आपके पास चल कर आएंगे, दूसरा आप स्टूडेंट्स के पास चल कर जाएं। तो ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए प्रोएक्टिवली कि हम लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने अपने तालुका प्लेसेस में, पूरे इंडिया का नहीं सोचना है हम लोगों को सोचना है कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करूँ। तो वहाँ की जो स्कूल्स हैं और जो कॉलेजेस हैं
वहां पर रीच आउट करना हम लोगों का सबसे पहला काम होगा। ये जो वॉलंटियर्स हमारे साथ रजिस्टर होते हैं उनके लिए आप उनसे रीच आउट करिए, उनके यहाँ एक जो मैनेजमेंट है, जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको समझाइए या डायरेक्टली स्टूडेंट्स को साथ समझाने की कोशिश करें। जब हम लोगों के इतने सारे क्वेश्चन हो सकते हैं तो स्टूडेंट्स को भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स को हर स्पेशल स्कॉलरशिप के लिए कैसे गाइड किया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप स्कीम जो है हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी है और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी है। उसमें होता ये है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, दूसरे टेक्निकल कोर्सेज कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, मगर वो लोग ये फॉर्म अप्लाई ही नहीं करते। तो आप एक कॉलेज सिलेक्ट करें, जाकर वहाँ हर बच्चे को वो स्कीम समझाने की और बताने की कोशिश करें। और ये मतलब यू शुड मेक श्योर दैट कि एवरी स्टूडेंट फिल्स दैट फॉर्म। उस फॉर्म के फिलअप में, इस पूरे प्रोसेस को रन करने में जो भी दिक्कत आएगी वी विल एक्सप्लेन यू। मगर आप हमारे जो है ना हैंड्स एंड फीट बनेंगे, आप हमारे माउथ बनेंगे, वहां पर आप जो है वहाँ काम करेंगे, हम लोग सेंट्रली ये सारी इंफॉर्मेशन आप तक कहीं ना कहीं पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि पूरे इंडिया में जिस तरह से रजाक साहब ने बताया कि वी हैव 700 डिस्ट्रिक्ट्स, मैं तो ये चाहता हूँ कि नॉट ओनली डिस्ट्रिक्ट्स, तालुका लेवल पर हमारे पास वॉलंटियर्स की एक टीम होना चाहिए। वो एनजीओ हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, वो टीचर्स हो सकते हैं, और कुछ लोगों ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं। यानी एक स्टूडेंट अगर वॉलंटियर बनता है तो वो अपनी कॉलेज में, अपने अतराफ में, मुझे लगता है ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकता है। तो इवन स्टूडेंट्स कैन बिकम द स्कॉलरशिप एम्बेसडर्स एंड दे कैन हेल्प पीपल इन फिलिंग अप द फॉर्म। आप ये चारों कैटेगरी के लोगों को गाइड करना हमारा काम है। दूसरी बात, जैसे आप इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स और अलग अलग स्टेट से आए हैं, हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो हम लोग एक पूरा सिस्टम स्टैब्लिश कर रहे हैं वॉलंटियर्स का अक्रॉस इंडिया, इसको प्रमोट करने में हम लोगों की मदद करें, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आप से फॉर एग्जांपल इफ यू आर फ्रॉम भोपाल, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है हम लोगों को इंदौर के लोगों से कनेक्ट करें, उज्जैन से कनेक्ट करें, बुरहानपुर से कनेक्ट करें, है ना। यानी मध्य प्रदेश की दूसरे तमाम जो डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस हैं, जो तालुका प्लेसेस हैं, वहां से हम लोगों को कनेक्ट करने की के लिए आप थोड़ी सी मेहनत करें। आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, उसके जरिए ये इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंचाएं, और हम लोग इस पूरे प्रोसेस को बहुत स्ट्रीमलाइंड वे में इंशाल्लाह चलाएंगे, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में चलाएंगे इंशाल्लाह। और कोशिश करेंगे कि आमिर भाई जैसे लोग जो है, उनकी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, हर स्कीम्स पे वीडियोस में क्वेश्चंस हैं आप लोगों के बहुत सारे, तो हर स्कॉलरशिप स्कीम्स पे वीडियोस भेजेंगे, कैसे फॉर्म फिल करना, उसका पूरा सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग्स भेजेंगे इंशाल्लाह, राइट, रिटर्न मटेरियल भेजेंगे, जरूरत पड़ेगी तो आपको पर्सनली भी गाइड करेंगे। ये ज्यादा से ज्यादा काम जो है वो ऑनलाइन करेंगे, फोन पर करेंगे, वेबिनार्स के जरिए करेंगे, है ना। और अगर जरूरत पड़ी तो आप लोगों को कोशिश करेंगे, हम हर स्टेट में या हर सिटी में अगर ज्यादा वॉलंटियर्स हैं तो उनको वहाँ स्पेशल ट्रेनिंग देने की भी कोशिश कर सकते हैं, अगर वो ज्यादा लोग हैं तो। ये सारी चीजें पॉसिबल है। ओनली थिंग इज लैकिंग इज द नेटवर्क। हमारी कोशिश है कि वो नेटवर्क स्टैब्लिश करने में हम लोगों को आप सब लोग मदद करें। एनजीओस और सारे लोग जो हैं, हम लोग बहुत सारे इश्यूज पर बात करते हैं, लेकिन ये जो है ना कॉन्क्रीट सोल्यूशन की तरफ एक कदम है ना, कि सिर्फ ना सिर्फ बात करेंगे बल्कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग छोटे छोटे एफर्ट्स के जरिए हर, अगर समझ लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास 200 एनजीओस हों और हर एनजीओ सिर्फ 100 बच्चों की स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन के फॉर्म भराए, तो आप सोचिए कि इट बिकम्स अ ह्यूज नंबर, है ना। तो नॉट ओनली टॉकिंग बट वी विल वॉक द टॉक, हम लोग जो है उस पर कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। सो दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। और इस तरह से रेगुलर मिलते रहेंगे। आप सब लोग जो है, जितने लोग रजिस्टर करते हैं हमारे साथ, वो सारे लोग जो है रेगुलर हमारे अपडेट्स जो है देखते रहें। हमने आज के ग्रुप में, आज के इस चैट में या क्वेश्चन से वी हैव आइडेंटिफाइड सर्टेन पीपल जिनके क्वेश्चंस आर वेरी रिलेवेंट, जिनके आइडियाज आर वेरी रिलेवेंट। हम चाहेंगे कि आप लोग हमारी कोर टीम का हिस्सा बने, ताकि ये जो प्रोजेक्ट हम स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, इसके मैनेजमेंट में आसानी। जैसे इसमें एक महमूद साहब है, महमूद भाई, है ना, तो हिज आइडियाज आर वेरी गुड। एक उनका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई हैव हिज मोबाइल नंबर एंड फोन ईमेल आईडी। हम लोग आप लोगों से कनेक्ट करेंगे, तो आप लोग इसकी एक कोर टीम फॉर्मेशन में भी मदद करें। अगर हम लोगों ने ये काम अच्छे से किया तो हम मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के जो इश्यूज हैं उसको इंशाल्लाह सॉल्व कर पाएंगे। तो आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर ऑल दी वर्क विच वी आर डूइंग। अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टूडेंट्स भी हैं वो भी, मैंने एक पुरानी लिंक हम लोगों ने शेयर की आपके साथ चैट पे, आप वो देखिए। और कोई क्वेश्चंस हैं तो हमने हमारी एक फेसबुक की लिंक शेयर की है, यू कैन कम एनी टाइम ऑन दैट फेसबुक लिंक एंड आस्क योर क्वेश्चन। वहाँ पर हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं दे विल ट्राई टू रिप्लाई यू, कि हम लोग कैसे जो है अलग अलग स्कीम्स पर जो भी डिटेल, जो भी क्वेश्चंस हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है उनको रिप्लाई करें आपके क्वेश्चंस को। तो वो फेसबुक लिंक पर ही रिप्लाई करें, वही एक सिंगल सोर्स होगा जहां आपके क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे और आपके क्वेश्चन को देख के दूसरे लोगों को भी जो है ना उसके आंसर्स मिलेंगे, राइट।
तो एक वो है, दूसरा हमने जो लिंक शेयर किया आप वो देखिए वीडियो, आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। नहीं सॉल्व होते तो आप हमारे साथ फेसबुक पे यू कैन आस्क एनी टाइम एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। दिस इज स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, फॉर वॉलंटियर्स, एनजीओज एंड द टीचर्स और दोज स्टूडेंट्स हु आर रेडी टू वॉलंटियर, उनके लिए हम एक जो है एक पूरा नया सिस्टम इंशाल्लाह एस्टैब्लिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Amir bhai, and thank you so much, Amir Nurli sir, for such a great and insightful session. Uh, Everyone who has attended this session, we request you all to please come together and work with AMP in this mission of helping students, and inshallah we all can together help many needy and deserving students to complete their education and lead a better life. AMP keeps organizing such sessions by highly qualified professionals and experts in their particular field to share their learnings and viewpoints to guide not only the youths but everyone with their own life's experiences. So we request you all to keep coming for such sessions and benefit from them. Now we will be ending this session with a dua, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر لنا أمورنا كلها مع راحتي لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you everyone for joining this session. We'll be ending this session for now. This is Shehzad signing off. Thank you. Assalamu alaikum.